सो आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है और अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमने जब ये प्रोडक्ट बना लिया, तो भाई इसको लॉन्च करेंगे, मार्केट करेंगे, क्योंकि जब तक पैसे नहीं आएँगे तो इवेंचुअली जो इकोनॉमिक साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगी। अब कोई भी पैसे आपको ऐसे नहीं देता, आपको प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ता है, वैल्यू प्रोपोज़िशन बतानी पड़ती है, तो आपकी एक गो टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। फॉर द सेम हमारे साथ जॉइंड है दानियाल हसन, जो कि जीटीएम एक्सपर्ट हैं एंड ही इज़ द हेड ऑफ ग्रोथ एट एआरवाई टेक, और वो हमें बताने रही है कि हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं। सो क्विकली ओवर टू यू दानियल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much, Mesam, for having me, and it's an absolute pleasure. I would like to appreciate the previous presenters, first of all, because it was a very insightful session for me as well. Secondly, I'd like to congratulate all the people who are in the audience right now because it's been a long session, and the people who have stick so far, I think they're pretty serious with their careers and with their aspiration to pursue AI. So kudos to you all. I won't take much long though. Just a quick intro about myself. I am the head of growth at Airway Tech right now. Airway Tech is the brainchild of Airway Group, and we are working on a lot of AI products, a lot of AI services, and all of that. Acha, a little background about myself is कि IBSc graduate हुए थे 2021 में. उसके बाद I've been working at Folio 3. Meanwhile एक master's degree कर ली थी in business analytics. So yeah, that has been the whole journey so far. Acha, I'll start off with a question to you all, and I would like you all to drop your those names in the comment section. मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने ज़रूर किसी प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, टूल के बारे में इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जिसके बारे में आपको लगा होगा कि यार इट्स अ वेरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सोल्यूशन, बट इट डिड नॉट गेन दैट मच ट्रैक्शन. इसके पास इतनी कोई लार्ज ऑडियंस नहीं आई जितनी फॉर एग्जाम्पल एक टूल है लवेबल, तो इट डिड गेन अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन द पास्ट ईयर और सो. सो इस तरह की कोई प्रोडक्ट हम लोग ने ज़रूर देखी होगी कि वो लॉन्च हुई मगर वो हिट नहीं करी, उसने मार्केट कैप्चर नहीं की. सो इसी तरह से देयर इज दिस टाइम इन द पास्ट ईयर 2025 में इस तरह का वक्त आया था. आप लोग को भी याद होगा कि जब AI नया नया आया था चैट जीपीटी के ऊपर, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ रैपर्स बीइंग बिल्ट अराउंड चैट जीपीटी, एंड हर दिन आप लिंक्डइन खोलते हैं तो 10 से 12 फाउंडर्स की आपके पास पोस्ट आ रही होती थी कि यू नो we have built this solution for this specific use case, this specific problem. But अगर आप आज देखें तो a huge chunk of those startups have failed. 95% according to some statistics, they disappeared quietly. Why? Because underlying technology was great. That wasn't the issue. But the problem was that the launch part of that was thought of as an afterthought. ठीक है, प्रोडक्ट बना ली बट आपने गो टू मार्केट नहीं सोची. So that at the end of the day आपने फंडिंग ले ली but you burned all of that cash in building the product and you did not go to the market properly. So today हमारा टॉपिक यही है कि जब आपने प्रोडक्ट बना ली, so the reality of launching the product, that is one thing that is often overlooked. And today we are covering the go-to-market strategy 101. And more importantly, we are going to look at how you can use generative AI to completely supercharge this process, and you don't become just another failed launch statistic. ठीक है. अच्छा, what is go-to-market strategy first of all? होती क्या है? So think of it as a high-level plan, high-level action plan, जिसके अंदर आप define कर रहे हैं. Basically, it's a blueprint that helps us answer some very critical questions, like who we are selling to, how will you reach those customers, and where they can buy your product, why they should use and choose your solution over the competitors, and most importantly, how do you charge them for your product. ठीक है, pricing plays a very critical role here because हमने अभी तक देखा कि हमने product बना ली from the ideation to design to MVP to the actual launch, but उसमें अंदर pricing कितना है, where is the economics of it. ठीक है, तो all of that is part of your go-to-market strategy, and this is not built in isolation. We need to clear this perception कि ये marketing की total job नहीं होती. This is also collaborative effort कि product, sales, business and marketing, they all work together in conjunction, and they devise based on all of their findings a pricing strategy for your product. ठीक है, हम लोग उस पर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे. एक बहुत हाई लेवल हम सिर्फ टच अपॉन करेंगे. अच्छा, इसको समझने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि अगर आप सबने अपनी बैचलर्स में या फिर कहीं पे पढ़ा हो, आपने 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो वो करते थे इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दे ऑल्सो अप्लाई टू डिजिटल एज वेल. बट हम लोग अगर ट्रेडिशनल को भी देखें तो प्रोडक्ट, प्राइस,
place, promotion. These were the 4 P's of marketing. प्रोडक्ट में आप क्या कर रहे होते हैं? प्रोडक्ट में यू आर डिफाइनिंग व्हाट वी आर सेलिंग, आपकी यूएसपी क्या है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की की वैल्यू प्रोपोजिशंस क्या है. दिस हेल्प्स यू फर्दर डाउन द लाइन टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई शुड अ कस्टमर केयर अबाउट योर प्रोडक्ट. ठीक है, कस्टमर को क्यों आपकी प्रोडक्ट अडॉप्ट करनी चाहिए. फिर प्लेस आपको बता दें कि यार प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से होगी, किधर जो है आपकी प्रोडक्ट रखी होगी. अगर मैं टपाल दानेदार लेने जाता हूँ तो मैं उसको मॉल्स में प्लेस करूँ या मैं उसको किराने स्टोर में रखूँ. इसी तरह मैं अगर वॉचेस सेल कर रहा हूँ तो वो मैं इसको किराने स्टोर्स पे रखूँ या फिर मैं उसको ऑनलाइन सेल करूँ या फिर मैं उसको मॉल्स में प्लेस करवाऊँ. ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी. ठीक है, फिर आता है प्रमोशन. प्रमोशन में क्या होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू रीच द कस्टमर. कस्टमर को रीच करने के लिए आप मार्केटिंग चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके फिर मल्टीपल चैनल्स आ जाते हैं. इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग और सेल्स, पेड एड्स आ जाते हैं उसमें. ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आती हैं टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अच्छा, लास्ट में आपकी आ जाती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. दैट्स अ बिग फैक्टर ऑफ जीटीएम, जो मैंने पहले भी बताया. ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्राइसिंग. फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी आपने कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देखी हो तो उसमें टीयर बेस्ड प्राइसिंग होती है, उसमें यूजेज बेस्ड प्राइसिंग होती है. अब क्योंकि एआई प्रोडक्ट्स आ गई हैं, एआई के पीछे देयर आर ऑल ऑफ दीज एलएलएम्स एंड एआई सॉफ्टवेयर्स बीइंग यूज्ड, तो उनकी यूजेज बेस्ड ज़्यादातर प्राइसिंग होती है. कि चैट जीपीटी में आपने टोकन्स की बेसिस पे प्राइसिंग चल रही है आपकी. तो ऑल ऑफ दैट इज सेपरेट स्ट्रैटेजी जो आपको आपके एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी का पार्ट होती है जीटीएम की. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं डिफाइन कर दूँ कि सिंस हम लोगों ने एक एप्लीकेशन अभी बनाई है एंड आई विल बी यूजिंग दैट फॉर सम रेफरेंसेस. तो सम अजम्पशंस, फॉर एग्जांपल देखें, देयर आर थ्री मॉडल्स. एक होती है B2B, ठीक है, मैं बिजनेसेस को सेल कर रहा हूँ. एक होता है B2C, मैं कंज्यूमर्स को सेल कर रहा हूँ. और एक होता है B2B2C, ठीक है, मैं बिजनेसेस को सेल कर रहा हूँ जो अपने कंज्यूमर्स को वो चीज़ सेल करेंगे. अब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूँ, हम लोग एयरवे टेक में एयरवे प्लस इज एन एप्लीकेशन जो हमने अभी बनाया है. इट्स कॉल्ड एन OTT प्लेटफॉर्म, और इट्स जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स और तमाशा और टैपमैट. इस तरह की वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एयरवे डिजिटल का तमाम कंटेंट भी है और साथ में आप अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा वो भी देख सकते हैं फ्री में. तो वो क्या चीज़ है, हम लोगों ने एयरवे टेक होते हुए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी होते हुए, एक प्रोडक्ट बनाई विच इज़ एन OTT प्लेटफॉर्म. ठीक है, वो हमने दे दिया एयरवे डिजिटल नेटवर्क को, जहाँ पे एयरवे डिजिटल नेटवर्क इज नाउ सेलिंग इट एंड मार्केटिंग इट टू देयर कंज्यूमर्स. ठीक है, जो लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो उसको वो चीज़ सेल करें. तो दैट्स अ B2B2C मॉडल. सही. यहाँ पे भी हमारी एजम्पशन क्या है कि भाई देखें, आप अगर किसी इवेंट में गए हो, लीप में गए हो फॉर एग्जांपल, अगर आप जाइटेक्स में गए हो, ठीक है, जितने बड़े इवेंट्स हैं, जितने इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर के पास इवेंट एप्लीकेशंस होती हैं. उन इवेंट एप्लीकेशंस के अंदर जो है ना, जब भी कोई अटेंडी रजिस्टर करता है तो उसका डेटा सारा वहाँ पे फेड होता है. एंड इट्स बेसिकली द सेम थिंग दैट वी जस्ट मेड. ठीक है, बट द ऑर्गेनाइजर इज गिविंग दैट ऑफ टू द अटेंडीज डायरेक्टली. उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने वो प्रोडक्ट बनाई है एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट डायरेक्टली टू दोज कंज्यूमर. सही है, इट गोज इन अ B2B2C मॉडल. सो यहाँ पे मेरी टारगेट ऑडियंस मुझे पता चल गया कि वो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं. कराची AI इज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर जिसको मैं ये एप्लीकेशन सेल कर रहा हूँ और वो अपने फिर कंज्यूमर्स को वो चीज़ आगे सेल कर रहा हूँ. तो इस अजम्पशन को हम लेते हुए आगे चलते हैं एंड फिर हम लोग आते हैं अपनी प्रोडक्ट पोजिशनिंग पे. अब पोजिशनिंग जो है ना, दिस प्लेज अ वेरी सेंट्रल रोल इन डिफाइनिंग योर GTM. ठीक है, यहीं से आपका सारा कुछ ड्राइव हो रहा होता है एंड इसकी बेसिस बनती है क्या, आपकी कंपेटिटिव रिसर्च. कंपेटिटिव रिसर्च जो है ना, वो जितनी कॉम्प्रिहेंसिव होगी उतनी ज़्यादा आप यू विल बी एबल टू डिफाइन ऑल ऑफ दिस very clearly and then translate the value that you're providing more in a more clear fashion to your buyers. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, the very first step is conducting a thorough competitive analysis. ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके कितने players हैं इस market में, how they have positioned their offerings. ठीक है, and where are the gaps in the market. उन insights को देखते हुए you curate your product positioning and there are few steps to do that. First of all, आप क्या करते हैं, you set your USPs. ठीक है, what sets your product apart. हमारे पास क्या है, हम लोग फॉर एग्जांपल अपनी प्रोडक्ट जो है उसको वाइट लेबल करके सेल कर रहे हैं. वाइट लेबलिंग ये होती है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है उसमें ब्रांडिंग जो है आप अपने कस्टमर की कर लें, सो दैट बैक एंड के ऊपर जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है उसका नाम नहीं आ रहा, एंड दैट्स अ वैल्यू
फॉर द बायर्स, ठीक है। तो वाइट लेबल ब्रांडिंग आप कर सकते हैं, रियल टाइम मैचिंग ऑफ पर्सोनास, ठीक है, वो इधर हो सकता है। ट्रैकेबल ROI इज वन फीचर, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द स्पॉन्सरशिप्स। कराची है कि भी स्पॉन्सर्स हैं, दे नीड टू सी कि यार इस इवेंट में एंगेजमेंट कितनी आ रही है, तो वो एंगेजमेंट दिखाने के लिए यू नीड डेटा, वो डेटा हमारी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। दिस ऑन बेसिस ऑफ द USP यू डिफाइन योर पोजिशनिंग स्टेटमेंट। अब पोजिशनिंग स्टेटमेंट हमने क्या रखी इधर, अ सेंट्रलाइज्ड ब्रांडेड हब फॉर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स दैट गारंटी अटेंडी एंगेजमेंट एंड एक्शनेबल इवेंट एनालिटिक्स। आपने यहाँ पे क्या बताया कि भाई ये है क्या, किसके लिए है और क्या चीज़ ऑफर कर रहा है, वो चीज़ आपने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी, ठीक है। देन यू मूव ऑन टू द वैल्यू प्रोपोजिशन। अच्छा, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, दिस बेसिकली गाइड्स योर मैसेजिंग, ठीक है। जब आप लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, जब आप अपनी मैसेजिंग करते हैं, मैसेजिंग थीम होती है आपकी एक, सोशल मीडिया पे हाउ द ब्रांड इज गोना अपीयर, लिंक्डइन पर कैसे जा रहा है, वो वेबसाइट पे किस तरह जा रहा है, उसको गाइड करती है इन दीज वैल्यू प्रोपोजिशंस कि हमारे कोर मैसेजेस क्या हैं, कोर वैल्यू हम लोग क्या दे रहे हैं ऑडियंस को। अब फॉर एग्जांपल जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए क्या वैल्यू है, इट एलिमिनेट्स ऑकवर्ड कॉल अप्रोचेस एंड गारंटीज रेलेवेंट कनेक्शन। जिस तरह तला ने मेंशन किया था कि आई वांट टू कनेक्ट विद सम कंटेंट क्रिएटर्स जस्ट लाइक माई सेल्फ, तो वो बेस्ड ऑन द डेटा वो रेलेवेंट कनेक्शन आपको सजेस्ट कर सकता है, तो दैट मेक्स देयर जॉब्स ईजियर। इसी तरह फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसको क्या वैल्यू मिल रही है, ड्राइव हायर टिकट रिटेंशन थ्रू बेटर अटेंडी एक्सपीरियंसेस। मैं जितना बेहतर अटेंडी एक्सपीरियंस दे रहा हूँ उतना ज़्यादा चांसेस है कि वही ऑडियंस नेक्स्ट ईयर भी आ रही होगी, नेक्स्ट इवेंट में भी आ रही होगी, दैट्स वन वैल्यू। Third would be generates verifiable engagement data to justify premium sponsorship packages. अब Karachi.ai, since this is a sort of a learning platform, यहाँ पे it's a community, right? But community को run करने के लिए भी they require fund, they required some sort of an investment. अब अगर they'll be able to generate more engagement and validate that data through this application to the sponsors, they can go to a larger scale, they can do in-person events, big events, go to premium places for their events. So this is the value proposition that we're providing. अच्छा, ये कुछ स्टेप्स होगा। अच्छा, लेकिन गुड पोजिशनिंग भी जो है ना, उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप आंसर करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इट डजंट कम फ्रॉम इंट्यूशन ओनली, ठीक है, इट कम्स थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, रिसर्च एंड फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अब ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम फ्लेच, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की इन्फोग्राफिक्स एंड डिटेल्ड मार्केटिंग, गो टू मार्केटिंग आर्टिफैक्ट्स बना के मार्केट करते हैं। So it's a great starting point for building a solid positioning. To get this right, you need to answer these 4 fundamental areas. अब इसको जरा डिटेल में अगर आप देखें तो what is your product first of all? What is your product में आप क्या बता रहे हैं कि भाई कैटेगरी क्या है आपकी प्रोडक्ट की, the existing bucket your tool fits inside. यहाँ पे हमारी क्या है भाई, white labeled event experience and networking platform, ठीक है। और यूज केस से आप सर्व कर रहे हैं। यूज केस मेरा ये है कि यार अटेंडीज जो है ना, दे शुड बी एबल टू मैच, ठीक है, दे शुड बी एबल टू कनेक्ट विद रेलेवेंट पीपल, स्पॉन्सर्ड लीड जनरेशन एंड इवेंट डिजिटलाइजेशन, ठीक है। दीज आर सम यूज केसेस जो हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एक अच्छी एग्जांपल जो मैंने अपनी लास्ट कंपनी में एक्सपीरियंस भी की थी पोजिशनिंग से रिलेटेड, वो ये थी कि देयर वाज दिस प्रोडक्ट दैट वी वर सेलिंग, इट्स कॉल्ड एग्री ERP, इट्स एन एंटरप्राइज ग्रेड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट्स पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ERP। अब उसमें मसला क्या था, मैंने जब ज्वाइन किया था तो इट वाज पोजिशन्ड एज योर वन स्टॉप फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब अगर उस इंडस्ट्री का मैं थोड़ा सा आपको क्विकली बताऊं तो फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, इट्स अ कैटेगरी, ठीक है। और उसमें बहुत छोटे प्लेयर्स भी हैं, उसमें बहुत बड़े प्लेयर्स भी हैं, बहुत छोटे टिकट साइज़ की सोल्यूशन भी हैं, बहुत बड़ी टिकट साइज़ की सोल्यूशन भी हैं। तो उसमें हम लोग ने स्ट्रगल कहाँ किया कि यार हम लोग मार्केट कर रहे थे, प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, बट लीड्स हमारे पास आ रही थी छोटे टिकट साइज़ की। दे थॉट कि यार इट्स अ स्मॉल सॉफ्टवेयर, वी विल जस्ट बाय इट एंड वी विल प्लग इट एंड इट विल बी गुड टू गो। बट मसला ये हुआ कि इट वाज एन ERP एंड द कस्टमर्स डिड नॉट नो दैट। जब हम लोग के पास हम लोग इनको एवेल्युएट करते थे, सेल्स पे जाते थे, तो इट यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, तो वो चले जाते थे। अब बट हमने फिर रिसर्च की, कंपेरेटिव रिसर्च हमने जब डिटेल में जाके देखा तो ERP बेस्ड farm management software was a separate subcategory within that broad spectrum. So we wanted to position ourselves in that space. Then we redefined all our messaging artifacts, and then we redefined our positioning statement to
योर कंप्लीट ERP फॉर फार्म मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी थी, उसमें 10 और चीज़ें थी अपार्ट फ्रॉम फार्म मैनेजमेंट. सो दैट्स व्हाट दिस फ्लाई व्हील एक्चुअली हेल्प्स यू विद. ठीक है. फिर आप आते हैं हु इज़ इट फॉर. हु इज़ इट फॉर में आप बताते हैं कि यार मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, कंपनीज हैं, उसमें डिपार्टमेंट में क्या है आपका, वो बताते हैं आप. What does it replace? It replaces manual processes, और it replaces completely unmanaged chaotic flow networking जिस तरह अभी होती है. और उसमें प्रॉब्लम हम क्या सॉल्व कर रहे हैं कि अभी कोई मैच मेकिंग नहीं है, नेटवर्किंग एक्सपीरियंस इज पुअर, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. फिर लास्ट में आप बताते हैं कि आपकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, वाई इज इट बेटर देन द स्टेटस को और द अदर एप्लीकेशन दैट देयर आर. ठीक है. आपने ये चीज़ कर ली. अच्छा, यहाँ पे एक स्मॉल कैच है कि यार आपकी पोजीशनिंग जो है वो बैड क्या होती है, गुड पोजीशनिंग क्या होती है. बैड पोजीशनिंग ये होती है दैट यू आर ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन. मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको भी सर्व कर दूँ, इस सेगमेंट को भी सर्व करूँ, इस सेगमेंट को भी सर्व करूँ. दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. गुड मैसेजिंग वुड बी दैट यू टारगेट a specified single target segment and you tailor your solution for that specific segment. So it creates a niche for your product. अच्छा, this brings us to the most important slide जिसकी तरह मैं आना चाह रहा था कि यार आपकी GTM स्ट्रेटेजी चलती किस तरह से, हाउ डू यू ड्राइव योर एक्शन प्लान फ्रॉम द स्ट्रेटेजी. अब देखिए, स्ट्रेटेजी के पीछे ना ये हिरार्की है गो टू मार्केट की. गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी आपने बना ली, इट्स एन ओवरआर्चिंग प्लान फॉर विनिंग द मार्केट. इसके अंदर आपने क्या किया था, आपने कंपेरेटिव रिसर्च की थी, आपने अपनी प्रोडक्ट को पोजिशन कर लिया था. ठीक है. एंड यू नो योर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड योर मैसेजिंग. ठीक है. इस सब के बाद यू गो टूवर्ड्स शॉर्टलिस्टिंग योर GTM मोशंस. GTM मोशंस क्या होते हैं? दीज आर द स्पेसिफिक लेन्स और मेथड्स यू यूज टू अक्वायर योर कस्टमर्स. यू डोंट डू एवरीथिंग एट वंस. ठीक है. आप जो है वो सारी मार्केटिंग के चैनल्स को एक साथ नहीं खोलते. मैं ईमेल्स, मैं लैंडिंग पेज, मैं फाउंडर ब्रांडिंग जो है वो सब कुछ एक साथ नहीं करूँगा. देयर विल बी स्टेप्स एंड आई विल डू द वंस विच आर मोस्ट रेलिवेंट टू माई रिक्वायरमेंट्स एज द GTM स्ट्रेटजी हैज डिफाइंड टू मी. ठीक है. इसमें से आप चूज कर सकते हैं भाई कि यार इनबाउंड मार्केटिंग का मुझे जो है वो मोशन सेलेक्ट करना है, आउटबाउंड करनी है, मुझे रीसेलर मार्केटिंग करनी है, या मुझे फाउंडर लेड ब्रांडिंग करनी है. ठीक है. दीज आर सम ऑफ द मोशंस. अच्छा, अब based on the selected GTM motions, you will then be able to figure out which channels you want to utilize to execute that motion. For example, I choose a outbound motion. ठीक है. मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया, अब मैं आउटबाउंड मार्केटिंग की तरफ जाना चाह रहा हूँ. उसमें मैं क्या करूँगा, आई कैन रन कोल्ड ईमेल कैंपेन्स, आई कैन डू कोल्ड कॉलिंग्स, और आई कैन गो टूवर्ड्स ABM यूजिंग क्ले. ठीक है. ये मेरे हो गए चैनल्स. सही है कि मैं किस तरह से जा रहा हूँ. ठीक है. मैं किस तरह उस मोशन को एक्टिवेट कर रहा हूँ. एंड लास्ट में आपका क्या आता है, लास्ट में आपके आती हैं टैक्टिक्स. एग्जैक्टली. ठीक है. दे आर द स्पेसिफिक पीसेस ऑफ कंटेंट और एक्शंस यू डिप्लॉय इन दोज चैनल्स. मैं अगर ABM करना चाहता हूँ तो ABM करने के लिए मुझे पहले क्या करना है, मुझे जाना है, मुझे डेटाबेसेस के अंदर जाके मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है कि यार पाकिस्तान के अंदर दीज आर द इवेंट ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, जो इवेंट करवाती हैं. एंड देन आई विल वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया. उसके बाद मैं ईमेल कैंपेन्स ड्राफ्ट करूँगा. ठीक है. मैं उनकी कॉपीज लिखूँगा. आई विल क्रिएट डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो मैं चाहता हूँ उन ईमेल कैंपेन्स में जाएँ, सो दैट यू नो दे बिकम इंटरेस्टेड एंड वी गेट ऑन अ कॉल. ठीक है. तो that basically is the whole process of going from a high level action strategy to an action plan. ठीक है. स्ट्रेटजी से प्लान तक का ये पूरा हमारा सफर होता है. अगर आप राइट पे देखें तो जो अभी हमारा यूज केस था, जो हम लोग बात कर रहे थे फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉल ओनली, वो ये था कि हम लोग को प्रोडक्ट लॉन्च करनी है. बट लॉन्च इज, एज यू कैन सी, इज ओनली फर्स्ट माइलस्टोन इन द GTM प्लान. मैंने लॉन्च कर दी, जब मैंने प्रोडक्ट बना ली, तो मैंने प्रेस रिलीज कर दी, मैंने ईमेल कैंपेन चला ली, आई क्रिएट एन इन्फ्लुएंसर कैंपेन, मैंने पेड एड्स रन कर लिए. बट दीज आर जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट्स. उसके बाद मुझे क्या मोशन करना है, विच इज गोना बी यू नो कंटिन्यूस इन नेचर. इट्स गोना बी 3 months long, 6 months long, and obviously it can vary in between as well, but it has to be continuous. ठीक है. It cannot be a one off thing जो आपने कर ली है उसके बाद you think के अब कस्टमर्स आते रहेंगे, the product is you know on self drive mode. ठीक है. ऐसा नहीं होता. So this was all about the GTM strategy hierarchy, and this is all also guided by comparative research. ठीक है. मैंने ये जो मोशन सेलेक्ट किए थे अपने, this has to be guided by comparative research कि मैं देखूं कि यार existing players जो हैं वो कस्टमर्स को किस तरह टैप कर रहे हैं. अगर तो वो इनबाउंड कर रहे हैं, मतलब वो लैंडिंग पेजेस बना रहे हैं, वो लिंक्डइन पे पोस्टिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट विल टेल मी
कि मेरा कस्टमर वहीं पर है, ठीक है, दे एग्जिस्ट इन दैट प्लेस, तो मैं उन्हीं इमोशंस पे जाऊँगा। अगर मुझे लगता है कि यार नहीं यार, मुझे फॉर एग्जांपल इन पर्सन इवेंट्स में जाना चाहिए, वहाँ पे एक्टिवेशंस करनी चाहिए, सो दैट इज़ माय कॉल, ठीक है, इस तरह से। बट यू नीड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। Now, all of this sounds like too much work, right? Matlab, there are a lot of things that you need to do in marketing, and it is a lot of work actually. But now with AI, it has actually become a lot more easier. It has changed a lot. It has been a game changer, no doubt. What used to take us days and weeks can now be done in few hours. And जिस तरह अभी हमने देखा कि हम लोगों को एक प्रोडक्ट बनाने में 2 घंटे लगे, which used to be a 2 months I think worth of job, जो हम लोग अभी देख भी रहे हैं in my company as well कि यार टाइम बहुत लगता है बाकी। But a lot of areas in marketing are also being completely or partially automated through AI. And every piece of software you buy now is powered by AI. There are multiple features within each product which are powered by AI, okay? And it boosts your productivity. So same is the case with the GTM. So we now see how generative AI actually accelerates your go-to-market. As you can see, it's now part of the entire marketing spectrum. ठीक है, यहाँ पे आप पोजिशनिंग से लेकर, रिसर्च से लेकर, लैंडिंग पेज क्रिएशन टू लॉन्चिंग आउटरीच campaigns to finally your pricing hypothesis. All of that is supported and accelerated by AI. Um, it does a great job, first of all, AI, at conducting in-depth competitor researches that helps us identify gaps, competitor strengths and weaknesses, the marketing mix that they are using, and which would be relevant for our go-to-market strategy. And based on that, it helps you create product positioning and messaging and A/B test value propositions. Okay, so you can do that very quickly with AI. Then it's great for building and iterating landing pages. Okay, with good prompting, you can create compelling headlines and CTAs, create customer focused content that actually appeals to the buyers, and then you can also obviously make it SEO optimized. Okay. देन अगर आप ईमेल्स के थ्रू अनाउंसमेंट्स करना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करना चाह रहे हैं, यू कैन ट्रेन योर एआई टू अडॉप्ट योर राइटिंग स्टाइल एंड जनरेट ईमेल कॉपीज एंड सोशल मीडिया कैप्शंस फॉर यू, ठीक है, ऑल ऑफ दैट कैन बी ऑटोमेटेड इजीली. And lastly, एक area जो is very crucial is pricing hypothesis. यहाँ पे ज़्यादा जब आप pricing अपनी setup कर रहे हो, there it enables you to probably probe on your competitors' pricing कि वो किस तरह उसको price कर रहे हैं. Are they pricing it based on tiers? Are they pricing it based on number of consumers, number of attendees? यहाँ पे वो usage based pricing है, ठीक है. These are all key factors in your customer acquisition and retention. अच्छा, quickly we'll just walk through a few use cases of AI within marketing. First of all, again, जिस तरह हमारे previous presenters ने बताया कि prompting is very crucial. You need to define the persona to the GPT कि act as developer, act as an AI architect. Here we are telling it that act as a B2B SaaS copywriter, और उसको हमने टास्क बता दिया कि हम लोग को लैंडिंग पेज एक बनाना है, ठीक है, दैट विल फॉर्म अवर वेबसाइट. और हम लोग की पोजीशनिंग क्या है जो हम लोगों ने अभी तक डिफाइन कर चुके हैं. हम लोग उस पोजीशनिंग की बेसिस पर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे कि यार मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फॉर द लैंडिंग पेज, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है और व्हाट यू शुड टॉक अबाउट. अच्छा, मेरे पास प्रॉम्प्ट इसका बना हुआ है, मैंने इसको यहाँ फीड किया हुआ था. It's not opening for some reason. Just give me a second. आई थिंक आप स्क्रीन अनशेयर करके दोबारा से शेयर कर लें मे बी. Yeah. Just sharing this screen. Is my screen visible, Mesa? जी जी, अब आपकी स्क्रीन नजर आ रही.
ग्रेट। अच्छा, इसको हम करते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट आप जितना डिटेल देंगे उतना ज़्यादा बेटर वो कॉपी लिखेगा। सो इट्स वेरी क्रूशियल कि आप अपने प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो इन डेप्थ बनाएं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एंड पोजिशनिंग मैंने इसको बता दी कि ब्रांड का पर्सोना क्या है एंड कॉपी राइटिंग के रूल्स मेरे क्या हैं, मुझे स्टाइल किस तरह का चाहिए राइटिंग का, पैराग्राफ लंबे नहीं होने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करना, ठीक है, वैल्यू ड्रिवन अप्रोच रखना कि भाई टेंजिबल आरओआई आप बताएं इन एवरी फोल्ड, टोन क्या है आपकी, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है या फिर अथॉरिटेटिव है, किस तरह से उसको बात करनी है, मार्केटिंग जार्गन्स को यूज़ करना है या नहीं करना, स्ट्रक्चर कितना लंबा होना चाहिए, कितना लेंदी होना चाहिए, वो मैं इसको यहाँ बता सकता हूँ। अच्छा, मैं अगर चाह रहा हूँ कि यार मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि यार हाउ द पेज शुड लुक लाइक, किस तरह मैं इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ, आई कैन टेल इट एज वेल कि यार मेरे फोल्ड 1 में क्या होना चाहिए, फोल्ड 2 में क्या होना चाहिए, की फीचर्स मुझे बताना है, मुझे फ्लैश कार्ड दिखाना है, वट एवर यू वॉन्ट, यहाँ पे आप बता सकते हैं। अच्छा, दिस इज वेरी just the first iteration, तो it's not going to be that nice, but nonetheless हम लोग इसको जब further improve करेंगे तो it gets a lot better। हम लोगों ने अभी recently अपनी वेबसाइट्स के अंदर जो है टोटली थ्रू AI लैंडिंग पेजेस जो हैं वो बनवा के हम लोग लाइव करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो दैट्स अ प्रोसेस दैट आई एम टेलिंग कि अब proper companies are using AI to make the development process from 3 days to just a few hours of job, ठीक है, so that's actually the reality right now। अच्छा, इसने मुझे जो है ना, मैंने इसको बोला था कि मुझे एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना दे, तो इसने एक .md फाइल बना दी है। इसको मैं या तो कॉपी कर सकता हूँ अपने पास या फिर आई कैन गो अहेड एंड क्रिएट द वेब पेज डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो ये आपको बेस्ड ऑन योर कंटेंट वेब पेज भी बना सकता है। अब इसने मुझे एक इंटरैक्टिव वेब पेज बना के इधर दिया है, सो we'll just watch it together। Turn attendee networking into revenue. Stop leaving connections to chance. Deploy a white label event platform that generates meaningful meetings and proves hard ROI to your sponsors. So this is very spot on. This is exactly what we are targeting. तो अगर कोई event organizer इधर आएगा with the use case of कि यार my attendees are not able to engage, I'm not able to gather much sponsors, so they'll see the value here right away, ठीक है। अच्छा, you can see how advanced this is, that it generated me this visualization of the before and after. You can see that there are buyer, seller, investors present in an event, but they are all scattered, they don't know who to meet, so yeah, but with the matchmaking capability of a software, you can see that it has segmented those investors, sellers, buyers together and created a connected environment, okay। So this clearly tells you the value right away, key features and capabilities, business case for organizers, this is pretty nice। अच्छा, सेम थिंग कैन बी डन बाय लवेबल, ठीक है। जेमिनाई क्योंकि फ्री है, फ्री में भी ये काम कर देता है। लवेबल हैज़ पेड प्लान्स, आई थिंक उनके $25 पर मंथ के पेड प्लान्स होते हैं। फ्री में यू कैन ओनली जनरेट अ फ्यू आई थिंक 1 लैंडिंग पेज एट मैक्स। तो बट ये है कि लवेबल का जो आउटपुट है, इट लुक्स मच मोर प्रोफेशनल, यू कैन सी, ठीक है। It has interactions as well। सो यहाँ से देखें, मैं जो ना एक तो डिप्लॉय भी डायरेक्टली कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ कि आई कैन डायरेक्टली जस्ट डिप्लॉय दिस एज अ लैंडिंग पेज, स्टैंड अलोन लैंडिंग पेज। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि आई कैन गेट द कोड फ्रॉम हियर, आई कैन गिव इट टू माय डेवलपर एंड गेट इट पब्लिश, ठीक है। इसको डिप्लॉय करने का फ़ायदा एक यूज़ केस में आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग ABM कैंपेन्स रन करते हैं ना, तो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग कहते हैं उसको, ABM को। उसमें ये होता है कि यू रिसर्च वन स्पेसिफिक कंपनी, ज़ाहिर हर कंपनी के यूज़ केसेस आर डिफरेंट, हर कंपनी के जो पेन पॉइंट्स हैं दे आर डिफरेंट। तो you curate a landing page tailored and targeted for that specific business, ठीक है। और मैंने वो बना के जल्दी से डिप्लॉय करके मैंने उनको उसका लिंक दे दिया कि यार मतलब आई थिंक वी स्टडीड योर कंपनी एंड आई थिंक that these are some of the problems that you're facing, just go through this landing page and see if you see the value in it, okay। We can just shorten the period of your campaigns and iterations to just a few hours, so that's the real value behind AI। एंड सिमिलरली अगर मुझे हमारी जो प्रोडक्ट लॉन्च था उसमें मुझे ईमेल कैंपेन्स रन करनी है, मुझे ड्रिप कैंपेन्स रन करनी है, अनाउंसमेंट्स रन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू क्लॉड दिस टाइम। अगेन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टूल्स,
Some of the leading tools are Claude, Lovable, Gemini, Perplexity, and a few others. तो यहाँ पे जाके आप कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. तो कंटेंट राइटिंग हैज़ बिकम रियली सिंपल. यहाँ पे आपने अगेन डिफाइन कर दिया टोन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, एंड आपने उसको बता दिया कि मुझे ड्रिप कैंपेन बनानी है फॉर 3 ईमेल्स, ठीक है. तो उसने मुझे कंटेंट बना के दे दिया कनेक्टेड ईमेल्स का, ठीक है. पहली ईमेल आपकी अराउंड प्रॉब्लम है कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवाई उनकी और उनको एक सोल्यूशन बना के बता दिया कि यार आवर सोल्यूशन कैन डू दिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन डू अ 15-minute डेमो. फिर आप सोशल प्रूफ की ईमेल करेंगे कि if they are further interested you can send them their your social proof कि यार we are doing this for this company and उनको ये फ़ायदा हुआ है. all of that you can see कि at one prompt उसने मुझे बना के दे दिया. अगर मैं ये नॉर्मली कर रहा था it would have taken me maybe 3-4 hours, but इसने मुझे डायरेक्टली बना के दे दिया. I can just tweak it and use it, ठीक है. सो आपने देखा कि GTM स्ट्रैटेजी आपने बनाई, GTM स्ट्रैटेजी को आपने ब्रेक डाउन किया इनटू एक्शन प्लान, और उस एक्शन प्लान को किस तरह से जो है वो AI ने एक्सेलरेट किया उसकी एग्जीक्यूशन को. सो सम ऑफ द की टेकअवेज दैट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर इज के अगेन आई थिंक यू गाइस आर ऑल इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, बट GTM इज क्रिटिकल. बेस्ट प्रोडक्ट्स मीन्स नथिंग विदाउट द राइट लॉन्च स्ट्रेटेजी, ठीक है. आपने देखा होगा अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो फेल हो जाती हैं. यू नेवर हियर अबाउट देम अनलेस कि उसकी मार्केटिंग की जाए, उसका मैसेज स्प्रेड किया जाए. जेन AI इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है. आपकी GTM को वो वीक्स से आवर्स में कन्वर्ट कर देता है, बट आपकी स्ट्रेटेजी वो आप ही को बनानी है. यू नीड टू नो कि यार गैप्स किधर है, मैं क्या चीज़ ऑफर कर रहा हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट you basically use AI to speed that up, ठीक है. So that's how it has to be used. Then speed enables iteration. आप जितना जल्दी execute कर रहे हैं, you can see you can fail fast and then you can repeat the process much efficiently, much better. जितनी जल्दी आप fail होंगे, आपकी strategy fail होगी, उतने better you can come back stronger next time. एंड ह्यूमन टच स्टिल मैटर्स. द लास्ट इज कि भाई आपने AI से चीज़ें जनरेट कर ली. AI इज वेरी गुड एट बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स, बिल्डिंग लैंडिंग पेजेस, बिल्डिंग सोशल मीडिया पोस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे जो आपका रीडर है दैट्स अ ह्यूमन. उस ह्यूमन को एक ह्यूमन टच ज़रूर चाहिए. एंड अगर आप AI कंटेंट ही डालेंगे it does not feel completely authentic. So make sure that you generate through AI, you take complete help from it, but you then tailor it with your own writing style. You add your own anecdotes, refine it further, and then publish it. So that's, I think, as quick as I can do for the GTM part. A lot of things are still missing. Definitely, the pricing part is it requires a lot of more time, but we'll stop here, and I'll be happy to entertain any questions if you have any. I think thank you so much, दानियाल. आपने वैल्यूएबल इंसाइट भी शेयर करी GTM के हवाले से. लोगों को GTM का प्रोसेस नहीं पता था, तो वो भी काफ़ी हद तक पता चला, और इसके अलावा आपने डेमोज भी दिखाए लाइव. तो आई थिंक ये एंड टू एंड अगर हम इस पूरे इवेंट को देखें तो ये बहुत वैल्यूएबल सेशन बना है. तो थैंक यू सो मच दानियाल. Yeah, just to add one thing, you're welcome, Mesam. It was an absolute pleasure. I just see a comment of Muhammad Jawad. Shouldn't we focus on GTM at the time of product ideation? I think we definitely should. That is one of the areas जिसमें मेरी भी अक्सर अपनी product teams से debate चलती रहती है that when we are building the product we need to sit together. GTM is not an afterthought. मैंने जो start में बताया that a lot of products fail because they start to think about the go-to-market when they have built the product, launched the product. So that's not how it should be. The product marketing has a seat at the table when you are actually building the product. क्या हम जो चीज़ बना रहे हैं, सो हमें ये देखना है कि यार आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह पोजीशन किया हुआ है, हाउ यू कैन फिल दैट गैप. तो ऑल ऑफ दैट इज पार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्ट आइडिएशन साइकिल. You're absolutely right. Okay, so this means कि आइडिया के स्टेज पे भी GTM को हम इन्वॉल्व करें और हमें पता हो कि हम किस मार्केट को टैप कर रहे हैं, ताकि हम उसी हिसाब से थोड़ा सा आइडिया को तो नहीं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करें उसके बारे में पता हो यूजर्स, और फिर जब उसको मार्केट करने जाएं तो भी फिर हम प्रिसिशन मार्केटिंग पे जाएं. उस टाइम पे सोच नहीं रहे हो कि मार्केट किसको करना. Yeah, right.
अभी भी देखें, अभी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे, सो मैंने जो अजम्पशन आप लोग को बताई वो इसीलिए बताई कि मुझे खुद ये क्लियर नहीं था कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वी आर वी इंटरनली द टीम ऑफ कराची एआई, या फिर कराची एआई इज अ कस्टमर ऑफ द टीम हु इज बिल्डिंग द प्रोडक्ट. अगर तो कराची एआई इज अ कस्टमर, दैट मीन्स दैट वी आर सेलिंग टू अ बिजनेस. ठीक है, हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम लोग बिजनेस को बना रहे हैं, बिजनेस के लिए बना रहे हैं. दे आर गोना डिस्ट्रीब्यूट इट टू देयर attendees and their customers. So there is a difference in the marketing. अगर मैं consumers को market कर रहा हूँ, it wouldn't really make sense. ठीक है, क्योंकि अगर मैं Jitex जा रहा हूँ तो मेरी application में Jitex के लिए login information या फिर उसके attendees मेरे पास आके login नहीं कर रहे होंगे. Jitex जो लोग जा रहे हैं, जो लोग sign up कर रहे हैं, they need the application for Jitex. तो